My name is Swapnil Sisle. I have secured All India rank 395 in this year's UPSC CSE 2021 exam. Uh, so, a small introduction regarding myself is uh, I belong to Yavatmal district of Maharashtra. This is near Nagpur, and I have done my graduation in the year 2013 from IIT Kanpur in Materials and Metallurgical Department. Then I did job for around 2 years at Jindal Steel and Power Limited in Odisha. Thereafter, I did masters in IIT Bombay, and my specialization was material science, and I worked on semiconductor pressure sensor fabrication. After that, I did not take the campus placements, but I thought to join UPSC. Now, the major reason to join UPSC and not to take a private sector job was, first, I belong to quite middle class family. My father was supervising primary health center, and like CEO and district collectors, they were kind of role models to me since childhood, as father used to have interaction with them a lot. The second biggest reason was कि after working in various industries, and also I received Tata Fellowship in 2018 during my masters, so it exposed me to the work of an IAS officer. Not only one IAS officer will be handling the district administration in the previous, let us say, 10 years or 15 years, but after 15 years, he will be handling various ministries. Let us say Ministry of Steel, let us say aviation, let us say petroleum industry. So I thought this would be one of the biggest reason that it will provide me diversity in my career aspects. So from 2018, I started this UPSC preparation. I directly went to Delhi. I joined Sriram IAS coaching, but I just started, I continued it only for 6 months. I realized that coaching can only give me exposure of, let us say, some history or let us say geography. It will be kind of a storytelling thing, but it was not helpful for me in solving my questions of prelims and mains. So I came back to my hometown in February 2018, and I started preparation on my own. So as told to us by UPSC time, we will take this session as a bilingual so that more people can access this and can get benefit from this session. सो जब यहाँ पे मैं वापस दिल्ली से 6 महीने के बाद यहाँ आया होम टाउन में, तो मैंने यहीं से अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और 2018 से लेके 2021 तक मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है. और उसके बाद फिर आखिरी में मैंने, जब मेरा 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद मैं वापस दिल्ली चला गया था मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए, और फिर अभी फाइनल रिजल्ट के बाद ही आ रहा हूँ. सो इन अ वे इस जर्नी में मेरा 2018 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था बिकॉज काफ़ी कम प्रिपरेशन थी. 2019-20 में मैंने मेंस लिखा था, बट आई कुडंट क्वालिफाई इट फॉर इंटरव्यू. फिर 2021 में मेंस, इंटरव्यू और सब क्वालिफाई होने के बाद मेरी रैंक 395 आई है. सो ये थोड़ा 4 साल का काफ़ी लंबा जर्नी रहा है. So this was my little introduction और UPSC journey. But I would say एक जर्नी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मेरे, कि 2020 में मेरा क्लियर हो सकता था पूरा. हाउएवर आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड फ्रैक्चर्ड माई हैंड. मैं ये क्लियर कर सकता था 2020 में. हाउएवर भाई, जैसे मैंने बताया कि मैं 4 जनवरी को मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, राइट हैंड, एंड 8 जनवरी 2020 को यूपीएससी का मेंस था. मेरा राइट हैंड दोनों उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी, स्मॉल वन एंड उसके बिसाइड की. सोच रहा था कि अटेम्प्ट नहीं करूँगा लिखने का. हाउएवर पेरेंट्स, स्पेशली मॉम और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यूपीएससी प्रेप के,
उन्होंने कहा कि कर दो, लिख दो मेंस, चाहे जितना भी लिखो बस लिख दो। सो बिना प्लास्टर बांधे, जस्ट पेन किलर्स पे, मैंने वो 2020 का मेंस के ऑलमोस्ट 9 पेपर्स विथ फ्रैक्चर्ड हैंड मैंने लिखे। ऑल्दो मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि GS3 GS4 में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, लाइक GS3 में मैंने 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे और GS4 में मैंने अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन छूट गए थे। बट ये जो डाउन था, इसी ने एक्चुअली मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सपोर्ट किया और मैं लाइक 2021 में अभी फिर से मेंस दे के क्लियर हो पाया। सो दिस वाज माय लिटिल बिट जर्नी। नाउ आई विल स्टार्ट ऑन UPSC प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी। सो UPSC प्रीलिम्स में 4 बार मैंने प्री दिया है, बट ऐसा कोई सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैंने सिंगली फॉलो किया है, बिकॉज 4 साल में आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज चेंज करते हो। अगर मेरे साइड से मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा तो इट वुड बी कि यार प्रीलिम्स में हमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमें कुछ भी करके क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, एंड अगर अभी का हम स्टेटस देखते हैं तो इट शुड बी अराउंड 95 to 100। अगर हमें उतने नंबर लाने हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 85 के ऊपर क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 100 में से। और मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि रादर देन जस्ट स्टडिंग द टेक्स्ट बुक्स जो हमें लाइक रेफर करने के लिए बताई गई है, उससे ज़्यादा हमें फोकस करना है टेस्ट सीरीज पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये मैं कहूँगा द बेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज, अगर हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है तो इस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी विच इज 33% आई कैन गिव। सिर्फ थ्योरी के कुछ बुक्स पढ़ने से हम मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे 100 में से, फिर चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो। बुक्स तो वही हमारे सेम कॉमन ही होते हैं जो सारे कोचिंग सेंटर्स रेफर कराने के लिए कहते हैं। बट आई वुड से कि एक सब्जेक्ट और एक ही बुक रेफर कीजिए प्लीज़। अगर आप एक से ज़्यादा बुक रेफर कर रहे हैं तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये भी है। और अगर ये सारे जो बुक्स है इनको आप प्रियोरिटी वाइज इन सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए। जैसे आप PYQ का एनालिसिस करते हैं तो PYQ के एनालिसिस में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे, फॉलोड बाय एनवायरमेंट, फॉलोड बाय पॉलिटी एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग। बीच में साइंस टेक भी आता है। तो आई वुड से आपकी पढ़ाई इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप पॉलिटी काफ़ी आसान होता है और M लक्ष्मीकांत बुक है, आप उसको डेडिकेटिवली पढ़िए। देन इकोनॉमी पे आ सकते हैं और उसके बाद एनवायरनमेंट पे आ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ सकते हैं और आखिरी में एंशंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर आ सकते हैं। एंशंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर में बहुत कम आउटपुट मिलेगा, सो आई वुड से उसको आप काफ़ी एंड में प्रिफर कीजिए। आफ्टर दैट ऐसा है कि एक बार आप कोई सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ लेते हो या टेक्स्ट बुक ख़त्म करते हो, आई वुड से गो फॉर टेस्ट सीरीज जो विजन या इनसाइट दोनों स्टैंडर्ड है या कोई और भी, और इनके टेस्ट सीरीज के हिसाब से लाइक टॉपिक वाइज, जैसे विजन मैं फॉलो करता था तो विजन में लेवल 1 है, विजन में लेवल 2 है एडवांस में, तो इन दोनों का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज होता है, तो ये मैं कवर करता था वो टॉपिक पढ़ने के बाद। यस, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, ट्रू। ये जब हो जाता है तब फिर एक बार पूरे सब्जेक्ट्स हो जाने के बाद फिर मैं विजन के फुल लेंथ टेस्ट अप्लाई कर लगाता था। तो ये रहा अप्रोच का तरीका। और इसमें एक्चुअली अगर हम थ्योरी को 33% देते हैं, 33% हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देते हैं और 33% हम लोग टेस्ट सीरीज को देते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टेस्ट सीरीज के साथ प्लीज़ फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2 चीज़ें देगा। एक तो पहली चीज़ वो बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप एलिमिनेशन करना सीख जाएंगे। जो यूपीएससी का यूजुअल तरीका होता है एलिमिनेशन का, वो आप प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं।
टू गिव यू एग्जाम्पल, लेट अस से साइंस एंड टेक होता है तो यूजुअली हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जाते हैं। द थिंग, और एक और तरीका है उसका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में भी ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री को तो 1995 से लेके अभी तक के हम पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसके लिए मृणाल की बुक को फॉलो किया था। द रीज़न बीइंग, अगर हम 2017 का पेपर देखते हैं तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन बटलर कमेटी। ये एक्चुअली बटलर कमेटी हमें ना स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ना एनसीईआरटी में, ना ही बिपिन चंद्रा में, बट दिस वी विल फाइंड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन ऑप्शन। आई थिंक 2002 से 2005 के किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया था। सो आई वुड से आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो स्पेशली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जितने भी टाइम से अवेलेबल है, लेटेस्ट मृणाल, तब से लेके अभी तक के अच्छे से कीजिए। टॉपिक देखिए, टॉपिक के अगर सराउंडिंग का पढ़िए और उसके नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिए। दिस विल बी द होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री पेपर। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही हम कह रहे थे कि टेक द टॉपिक, प्रिपेयर अराउंड इट, ऑल्सो प्रिपेयर ऑप्शंस फॉर दैट। देन लाइक ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो देन यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज जो विजन और इनसाइट का होता है, और वो भी आपको ऑलमोस्ट 33% प्रिपरेशन करा देगा। सो आई वुड से प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज होलिस्टिक ऑफ थ्योरी कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम टेस्ट सीरीज। अगर आप सिर्फ थ्योरी करते हैं, आई वुड से काफ़ी लोग यही मिस्टेक करते हैं और वो एलिमिनेट नहीं करना चाहते, नहीं जानते, तो काफ़ी बार असफलता पाते हैं प्रीलिम्स में। मैंने सिर्फ स्टार्ट में ही थ्योरी पढ़ी थी और मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था आई वुड से सिर्फ मैंने 1.5 महीने उसके लिए प्रिपेयर किया था और सिर्फ मैंने मॉक्स लगाए थे उसमें, टू बी लिटरली ट्रू। और यहाँ पे पेड और अनपेड का पूछा गया है। आई वुड से अब अगर आप दिल्ली में है तो आप दिल्ली में आपको प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं एज अ जेरोक्स में। सो आई वुड से प्लीज़ लाइक यू कैन यूज दोज। नाउ वी विल कम टू द डायमेंशन ऑफ लाइक अटेम्प्टिंग द GS1 पेपर। GS1 पेपर में 85 अगर अटेम्प्ट करने हैं और 30 आपको पढ़ने के ऊपर या आपकी प्रिपरेशन के ऊपर पता है तो 55 क्वेश्चंस आपको गेस करने पड़ेंगे। गेस ऐसे करने पड़ेंगे, कुछ में आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, कुछ में आपको 3 ऑप्शंस, कुछ में आपको काफ़ी पता भी नहीं रहेगा, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट टू क्लियर और गेट टू दैट कट ऑफ। आई वुड से इसके लिए टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ 2 चीज़ें आप प्लीज़ रेफर कीजिए। फर्स्ट इज फोरम IAS के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने प्रॉपर वीडियोस दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे टैकल कीजिए जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है। ये काफ़ी ट्रिक्स प्रोवाइड की गई है, उनको फॉलो कीजिए। देन देर इज अदर चैनल हार्ड वर्किंग ह्यूमन बींग नाम से, विच इज़ ऑफ IAS मनीष कुमार जी ऑफ कोडरमा। आप उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देख सकते हैं। और आई एम सेइंग यू, ये जो 2 चीज़ें आप ये जो 2 वीडियोस फॉलो करोगे ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर दैन दोज आवर्स ऑफ स्टडिंग थ्योरी। तो प्रीलिम्स का GS1 का यही एक प्रिपरेशन का बेस है आई वुड से। नाउ वी विल कम टू CSAT। यार CSAT का ऐसा है कि आई एम बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ था। मेरा स्ट्रैटेजी यूजुअली ऐसा था कि सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे क्वांट के वही मैं अटेम्प्ट करता था, और अराउंड मैं उस CSAT के टाइम पीरियड में अराउंड 45 के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स के और क्वांट के। सो आई वाज श्योर कि आराम से 67 के अबव मार्क्स आ जाएंगे। सो यही मेरा स्ट्रैटेजी था। 2018 से 2021 तक मैंने यही फॉलो किया था। और अब इस स्ट्रैटेजी के लिए ऐसा नहीं है कि पूरे क्वांट पहले से ही आता है। आई यूज टू रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें से कुछ टॉपिक्स बना लेता था कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वांट आता है। जैसे नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर वाला जो टेक्निक होता है या आपका कितने ज़ीरोज़ होते हैं वो वाला टेक्निक होता है ये। उसके बाद आप देखोगे तो कैलेंडर्स का काफ़ी कंटिन्यूस क्वेश्चन आता है, और उसी के बाद टाइम एंड वर्क का काफ़ी आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स बना लीजिए और इन टॉपिक्स के ऊपर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं थ्योरी के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लिए देख सकते हैं।
तो ऐसा मेरा सीसैट का स्ट्रैटेजी था। बट अगर आप मैथमेटिक्स या क्वांट से मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। बट मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा क्वांट था। नाउ समवन इज आस्किंग मी कि क्या हम 6 मंथ्स में क्लियर कर सकते हैं? यार ये वही बात हुई कि आप गोल को फोकस कर रहे हो। लाइक आई वॉज टू कॉन्फिडेंट कि आई वुड क्लियर यूपीएससी विद इन 2 years। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, पर मुझे खुद को 4 साल लग गए। करने वाले कर सकते हैं, देर आर मेनी पीपल, बट अप्रोच आपका मार्क्स लाने के बेसिस पे होना चाहिए। और उसको अप्रोच करने के लिए फिर टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस रखते हुए एक डायरेक्शन में आप करोगे, तो आप आई थिंक विद इन 1 year कर पाओगे, और काफ़ी लोगों ने किया है, तो उस क्वेश्चन को एड्रेस किया है। नाउ ये था अपना प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए प्लीज़। ओके, नाउ अगर मैं टेक्स्ट बुक्स बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए, तो वो वही है, 1 सब्जेक्ट 1 बुक। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है। देन इफ़ वी कम टू हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम राजू वहीर की थी, अराउंड 4 से 5 बार रिवीजन, एटलीस्ट एक ईयर में 4 से 5 बार रिवीजन। उसके बाद में लाइक आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, और फिर मेडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा सर की पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। प्लासी टू पार्टीशन कैसा है? सॉरी, मैंने उसको रेफर नहीं किया था। इवन स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद भी हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, सो हिस्ट्री काफ़ी लेस आउटपुट देगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के बाद ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ 11th की एनसीईआरटी की थी, मैंने 12th की एनसीईआरटी भी नहीं की थी। और 11th की एनसीईआरटी में वही हमारा फिजिकल जो होता है, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का, जिसमें रिवर्स और सॉइल और वेजिटेशन कवर्ड है, क्लाइमेट कवर्ड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, रिवर्स के भी काफ़ी आ जाते हैं उसमें। फिर फंडामेंटल जो है ज्योग्राफी 11th का ही, वो आई थिंक उसमें आप अगर जो आखिरी का है, ओशन वाटर हो गया, एटमॉस्फियर हो गया, इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वो प्रीलिम्स में काफ़ी काम आएगा। जो उसका पहले का पार्ट है, वोल्केनोज एक्सेट्रा, वो मेंस का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस का पार्ट है। सो दिस वॉज फॉर ज्योग्राफी। एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा था, बट आई वॉज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड विजन टेस्ट सीरीज उसके लिए। उसके बाद लाइक इकोनॉमी के लिए मैंने वही मैक्रो इकोनॉमी की बुक फॉलो की थी, और मैं विजन के टेस्ट सीरीज पे डिपेंडेंट था। मैंने ज़्यादा मटेरियल इकोनॉमी के लिए नहीं ढूंढा। अब आते हैं हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स के लिए यार मैंने चारों साल विजन के पीटी 365 पढ़ा था। मैंने मंथली मैगजीन फर्स्ट ईयर पढ़ा था 2018 में, बट उसके बाद मैंने मंथली छोड़ के 365 पे शिफ्ट हुआ था। बट टू लाइक ट्रूली से पढ़ने के बाद भी पीटी 365 काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती है, और अगर जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ भी जाता है तो उसको भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि उतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और अब आते हैं आखिरी न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर जो है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के 2018 में मैंने 6 महीने द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी रिलीजियसली और रिगुलरसली पढ़ा था। आई वुड से इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट न्यूज़पेपर बिकॉज एक तो वो आपकी वोकेबलरी बना देगा सोशोलॉजी के लाइक टॉपिक्स के रिगार्डिंग, और लेटेस्ट से इकोनॉमी के टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ मिट्स होती है, उनके रिगार्डिंग रेपो रेट्स एक्सेट्रा, वो उन चीज़ों से काफ़ी वाकिफ़ कर देगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एक्सेट्रा। तो आई वुड से 6 महीने के लिए मैंने द हिंदू पढ़ा। देन आफ्टरवर्ड्स आई स्टॉप न्यूज़पेपर, और मैं पूरा पीटी 365 पे शिफ्ट हो गया था करंट अफेयर्स के लिए। तो टू बी फैक्ट मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर बीच में प्रीलिम्स और मेंस के लिए उतना नहीं पढ़ा, और आखिरी में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था इंटरव्यू के लिए। तो ये ऐसा था पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज लगाना टेलीग्राम पर? यार प्रीलिम्स के लिए आई वोंट से
पता नहीं कैसा सही रहेगा, बट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज। अगर मैं कहूँ तो विजन और इंसाइट्स के, आई वुड से उन्हीं को फॉलो कर लो, जो स्टैंडर्ड है उन्हीं को फॉलो कर लो। बेवजह इधर उधर नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों को करके सही नहीं रहेगा। आई थिंक हमारा एनर्जी वेस्ट होगा, राइट। तो ये था प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन पूरा। बस लास्ट में कहूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन PYQ एंड टेस्ट सीरीज, एंड रादर देन नोइंग द ऑप्शन प्लीज़ फोकस ऑन हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ये बस प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी है। विजन्स के मैं मंथली मैगजीन नहीं यूज़ किए थे, मैंने PT 365 यूज़ किया था, ओवल और ईयरली वाला। तो ये था हमारा पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। और अभी हम जाते हैं मेंस की प्रिपरेशन की तरफ। सो मेंस की प्रिपरेशन एक्चुअली लाइक लेट अस से, मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैंने मेंस के लिए कोई टेक्स्ट बुक एज सच फॉलो नहीं की है फॉर ऑल GS1 से लेके GS4 तक, बिकॉज टेक्स्ट बुक यूज़ करना आई थिंक काफ़ी लाइक हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज उसका डिमांड नहीं है। मेंस की स्ट्रैटेजी मैं सीधे से कहूँ तो यू शुड डायरेक्टली फोकस ऑन आपको मार्क्स कैसे लाने पड़ेंगे। अगर मेंस का सीधा सा एक कैलकुलेशन है कि अगर आपको लिस्ट में नाम लाना है तो आपको अराउंड 750 के आसपास, या फिर जो भी मेंस का इंटरव्यू के लिए कट ऑफ होता है उससे 30+ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और आपको इंटरव्यू में 160 एवरेज होता है तो वो लाने पड़ेंगे। सो दिस इज टोटल कैलकुलेशन कि आप कैसे लेट अस से मार्क्स आप लाइक लिस्ट में नाम ला सकते हैं। लेट अस से कि मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, और सिलेबस को लिटरली लोग कहते हैं कि मगअप कर लीजिए, हाँ वही करना होता है। मैंने जो मेंस का था प्रिपरेशन, सबसे पहले ऑप्शनल को फोकस दिया था, देन आई हैव गिवन फोकस ऑन एसे एंड देन ऑन एथिक्स। बाद में मैंने जो बाकी रिमेनिंग पेपर्स है GS के, उनमें फोकस दिया था। तो ये यूजुअली GS का इस मेंस का इस साइड में प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा GS2 में, तो GS2 में सबसे पहले मैंने मतलब GS2 किया था, और GS2 में मैंने लाइक हम उस पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट का पार्ट, उसके नीचे गवर्नेंस का पार्ट आता है, और उसके बाद में आता है आपका IR का पार्ट। तो सबसे पहले मैंने गवर्नेंस का पार्ट कंसिडर किया था, बिकॉज इसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हो। और इसके अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो उसमें NGOs है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सिविल सर्विसेज है, या फिर गुड गवर्नेंस है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। सो आई वुड से प्लीज प्रिपेयर नोट्स ऑन दिस टॉपिक्स, और नोट्स भी इन टॉपिक्स में ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि लेट अस से कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन के बाद आप उसके रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के पॉजिटिव्स लिख लीजिए कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी वजह से वुमेन को लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है, सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है, क्रेडिट कैसे आ रहा है लोगों के पास, डिमांड कैसे बढ़ रही है। तो ये सारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के टॉपिक्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के फिर आप लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं कि काफ़ी घोस्ट बेनिफिशियरीज हो रहे हैं, लाइक फिर जो लाइक रिटर्न मांगते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के साइड से, तो वो काफ़ी अनएथिकल टाइप से भी मांगते हैं, काफ़ी फोर्सफुल होते हैं। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं उनके, वो भी लिख लीजिए। देन बाद में आइए कि गवर्नमेंट के क्या रिकमेंडेशंस है या क्या कमिटीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, तो उनके बारे में रिकमेंडेशंस आप नोट डाउन कर लीजिए, और वही आपका वे फॉरवर्ड टाइप सा हो जाएगा। और आखिरी में आप इसके ऊपर कुछ आपके डेटाज और कमिटीज नोट डाउन करके लिख सकते हैं। दिस विल इंक्रीज योर एटलीस्ट 1 और 2 मार्क्स अगर डेटा और कमिटीज लिखते हो तो। और आई वुड से एवरी मेंस के लाइक टॉपिक में यू प्लीज ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 to 3 डायग्राम्स आपके नोट्स में, ताकि जो आप डायरेक्टली ब्लैंकली एग्जाम में कॉपी कर सकते हो, बिकॉज डायग्राम्स फेच यू मार्क। द मोर इज रिप्रेजेंटेशन, द मोर बेटर इज योर लाइक मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। सो दिस वाज फॉर GS2 का। सबसे पहले टारगेट किया था मैंने गवर्नेंस का पार्ट, देन IR का पार्ट टारगेट किया था। IR के लिए एक्चुअली मैंने काफ़ी वेरिड रिसोर्सेज फॉलो किए थे।
मैंने दृष्टि से उठाया था कुछ, जैसे दृष्टि का जो टॉपिक होता है उस पर। कभी मैंने विजन आईएएस के पीटी 365 है तो कंट्री वाइज उसके ऊपर से उठाया था, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले लिया था। तो कोई ना सिंगल बुक ना फॉलो करते हुए आई जस्ट यूज टू ग्रैब मटेरियल जहाँ से भी मुझे मिलता है। ये होने के बाद फिर है कि आप GS2 पेपर के लिए कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, विजन होगा या फोरम होगा, तो इनका टेस्ट सीरीज होगा, तो इनके बेसिक टेस्ट सीरीज जो होते हैं सेक्शनल वाइज, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको एक तरीका देगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। एंड उसके बाद आप फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट सीरीज। ये आई थिंक प्रॉपर अप्रोच होगा मेंस के लिए। नाउ कमिंग टू लाइक GS1, अब मैंने GS2 खत्म करने के बाद मैं GS1 पे आ गया था। GS1 में सबसे पहले मैंने सोसाइटी का पार्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क फेच करता है और टारगेटेड वे में प्रिपरेशन होता है। सोसाइटी में भी सिमिलरली आप नोट्स बना लीजिए, और लेटेस्ट से सोसाइटी का रीजनलिज्म हुआ, उसके ऊपर काफ़ी कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं। देन लेटेस्ट से सेक्युलरिज्म हुआ, फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में कंपैरिजन हुआ। तो इनके ऊपर प्लीज़ आप एक एक दो दो पेज के A4 नोट्स या 1 नोट या A1 नोट जो भी करते हैं आप, वो नोट्स प्रॉपरली टॉपिक वाइज बना लीजिए अच्छे से। और वही फॉर्मेट होगा कि डेफिनेशन सबसे पहले, फिर शॉर्ट उसके पॉजिटिव्स, फिर उसके शॉर्ट कमिंग्स, फिर गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस, कमिटीज एंड डेटाज, और चाहे तो डायग्राम। मेंस के नोट्स हमेशा ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि यही आपको आखिरी में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। और हर टॉपिक के ऊपर 1 A4 पेज और 2 A4 पेज जितने ही नोट बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइए। सो दिस वॉज देन आई केम टू GS1, और उसका सोसाइटी का पार्ट किया था। GS1 में इवन जोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जोग्राफी में GS1 में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डायरेक्टली बुक से नहीं आएंगे। वो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर ह्यूमन जोग्राफी। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो विजन या फोरम की टेस्ट सीरीज होती है, उनमें से उनके आंसर्स पढ़ के आप उसको देख सकते हैं, और वही एक बेस्ट तरीका रहेगा। अदरवाइज अगर आप NCERTs या फिर कोई एक्सटर्नल टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल रहेंगे, तो आपको टारगेटेड मैनर में जोग्राफी का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा मेंस का। हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने GS1 में ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया था। मैंने जो प्रीलिम्स का बेस था उसी के ऊपर, और फिर टेस्ट सीरीज़ के जो मटेरियल थे या फिर टेस्ट सीरीज़ के जो आंसर्स थे, मैंने उसी के ऊपर मैं डिपेंड था। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लिए आई थिंक काफ़ी कहेंगे आउटपुट काफ़ी कम मिलेगा अगर हम पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक। उसके लिए भी मैंने विजन या फोरम के टेस्ट सीरीज़ पे ही मैं डिपेंड था, कि टॉपिक वाइज उसके ऊपर मैंने लाइक आंसर्स प्रिपेयर कर लिए थे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेटेस्ट से फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फिर आपका लाइक स्लेव का जो ट्रायंगल्स था हमारा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर टॉपिक वाइज ये प्रिपेयर किया था। अब हम आते हैं डायरेक्टली GS3 पेपर पे। GS3 पेपर 2019 से काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। वी कैन लाइक मुझे GS3 में काफ़ी कम भी मिले थे। एक बार 69 मिले थे, एक बार 76 मिले थे 2020 में, और इस बार मुझे GS3 में 92 या 89 ऐसे कुछ मिले हैं। सो GS3 हमेशा मेरा वीक रहा है, बट गिवन कि GS3 में बहुत ज़्यादा एकदम सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो GS3 का आई वुड से प्रिपरेशन आप थोड़ा टारगेटेड मैनर में कीजिए। जैसा फर्स्ट वुड बी कि मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था, स्पेशली जिसमें PDS है सिस्टम, देन देयर इज APMC कमिटीज़ है, क्रॉपिंग पैटर्न है। तो ऐसे चीज़ों पे मैंने फोकस किया था सबसे पहले प्रिपरेशन एग्रीकल्चर का GS3 पे। उसके में टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे वही A4 पेज पे। इकोनॉमी का भी वैसे ही किया था प्रिपरेशन, कि जॉब्स वर्सेस और इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे कुछ PYQ है, इनको फॉलो करके। उसके बाद लेटेस्ट से कि हमारा आता है उसमें सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी बार रिपीटेड टाइप के ही आते हैं। अगर हम देखते हैं तो नक्सलिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर करंट टाइम्स में साइबर वार हो गया, या तो ऐसे चीज़ों के ऊपर आप A4 नोट्स बना दीजिए, और ये डायरेक्ट आता है तो आप इन्हीं को आपके नोट से
कॉपी एंड पेस्ट टाइप का कर सकते हैं। तो दिस वॉज काइंड ऑफ GS3 प्रिपरेशन, बट आई वुड से एकदम अंदर मत जाइए, ऊपर ऊपर से आपका कवर कीजिए। अब हम आते हैं लाइक एथिक्स पे। एथिक्स पे आई वुड से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा एक एक पेज का लिख सकते हैं मटेरियल, और उसको बस एक डेफिनेशन पहले देख लीजिए और उसके एग्जांपल्स लिख लीजिए हर टॉपिक के ऊपर। तो ये एक बेस होगा, बट इसके ऊपर से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इवन आप कोई भी फिर टेक्स्ट के पीछे जाओगे, लेक्सिकन मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी बट आई डिडंट फाइंड इट प्रॉपर यूजफुल। फिर मैंने खुद ही से नोट्स बनाए इधर उधर से, और सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया कि GS4 में आप कैसे आंसर्स लिख सकते हैं उस पर। सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा पेपर 2019 और 2020 में कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया। GS4 का हमेशा मेरे 3 से 4 क्वेश्चंस छूट ही जा रहे थे। इस बार फोरम में जो मेरे मेंटर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी, उनके साथ मिलकर हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। और उसकी GS4 की स्ट्रैटेजी मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट प्रिपरेशन ऑन बेसिस ऑफ टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस, बट GS4 का पेपर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 120 मार्क्स हमें केस स्टडीज़ के ऊपर होते हैं और 130 मार्क्स हमें सेक्शन ए क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर होते हैं, जो 10-10 मार्क के होंगे। आई वुड से फर्स्ट फोकस ऑन केस स्टडी पार्ट, और उसको आप जितने अच्छे से और जितने जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिशियली आपको आउटपुट मिलेगा GS4 में। फिर उसके बाद आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ सकते हो, और वो भी आई वुड से गिव एज मेनी टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल फॉर GS4 एंड कंप्लीट विद इन द टाइम। तो यही एक फाइनल फंडा है GS4 के लिए। तो ये हो गया यूजुअली GS पेपर्स का प्रिपरेशन। अब है एसे का प्रिपरेशन। मैंने एसे के लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज या कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। मैं यूजुअली टॉपर्स के एसे पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और वही टॉपर्स के एसे ने काफ़ी अच्छे से बताया है कि हाउ वी कैन कवर ऑल द डिमेंशंस। मैं यूजुअली फिलोसॉफिकल एसेस ज़्यादा प्रेफर करता था, एंड इनिशियली मैं हमेशा स्टोरी इसमें इनपुट करने की कोशिश करता था टू कनेक्ट द टॉपिक विद माई फ्लो ऑफ माई एसे। उसके बाद में मैं वेरियस डिमेंशंस कवर करता था उस स्टोरी में, एंड एट द एंड आई यूज्ड टू कंक्लूजन में उस स्टोरी को फिर से कंक्लूजन में ले आके उस एसे को काफ़ी एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में लाइक कोई कोट के साथ वगैरह मैं एंड किया करता था। एंड मुझे एसे में ऑलमोस्ट हमेशा लाइक 136 130 इसी के आसपास मार्क्स मिले हैं। सो दिस वॉज फॉर एसे। अब आते हैं ऑप्शनल पे। एक्चुअली मेरा जो ऑप्शनल था वो केमिस्ट्री था। मंथली मैगजीन्स, मैम मैंने मंथली मैगजीन्स कोई फॉलो नहीं की थी। मैंने ईयरली PT 365 पढ़ा था। अगर हम देखते हैं यूजुअली, हम ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे अभी, कि ऑप्शनल में ये जो ऑप्शनल है उसी के मार्क्स हमें सबसे ज़्यादा 250 के अबव हम अगर लाते हैं तो हमारा लिस्ट में नाम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा यूजुअली यूपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए प्रियोरिटी वाइज EEOI। So this is the usual formula we can say we follow for UPSC preparation. E is ethics, E is essay, O is optional, and I is interview, which is at the last. So that is why optional comes as most important thing. ऑप्शनल में अगर मेरा केमिस्ट्री था तो मैंने एक्चुअली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, तो मैंने कोचिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं की थी केमिस्ट्री की। मैं खुद से एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के कुछ नोट्स थे मार्केट में अवेलेबल, तो मैंने उसको फॉलो किया था केमिस्ट्री के लिए। बट बाद में मुझे लगा कि मेरा पेपर 2 काफ़ी वीक है, तो उसके लिए मैंने डायस में कोचिंग ज्वाइन की थी। हाउएवर यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी ऑप्शनल की, एंड इट कॉस्टेड मी 2 years और 2 attempts लेट 2 extra attempts. I would say for any optional, please
like it would be better to join the coaching and take down the notes from the coaching and उसके टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर लीजिए. क्योंकि आप मैंने एक्चुअली ऑर्गेनिक में पेपर वन में काफ़ी सारे बुक्स फॉलो किए थे और वो आखिरी में मुझे मतलब रिवाइज करना भी नहीं हुआ था, तो मैंने काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया इस चीज़ में. केमिस्ट्री के लिए अगर देखोगे आप, अगर मैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कहूँगा प्रॉपरली, सो आई वुड से जॉइन डायस, टेक नोट्स फ्रॉम देयर, फर्स्ट गो थ्रू दोज नोट्स. ये सबसे पहली बात है. सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सारे ले लीजिए और उसको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए. मैंने खुद का वर्ड में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं. आई विल बी शेयरिंग दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल. उसके बाद आप टेस्ट सीरीज डायस की या कोई भी ज्वाइन कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, बट सबसे ज़्यादा फोकस रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में और उसके टॉपिक्स पढ़ने में, क्योंकि वही आपको एक आइडिया देगा और आपको मार्क्स फेच करेगा. अदरवाइज पढ़ने के लिए काफ़ी लॉन्ग है ये. ये था ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी. फिर ये यूजुअल मेरा ऐसा ही प्रिपरेशन था. अब आते हैं मेंस के प्रिपरेशन का. ये पूरा सार है और आई वुड से टारगेट कि मेंस में आप ऑप्शनल में 250 के अबव मार्क्स ले आए, एसए में आप 120 to 130 मार्क्स ले आए, जीएस में आपको 95 से 110 के बीच में होना चाहिए चारों जीएस पेपर्स में, एथिक्स में आप ज़्यादा फेच कर सकते हैं. तो अगर आप इन सबको लाइक एड ऑन करते हैं तो आप 750 के आसपास जाने चाहिए. दिस इज द कैलकुलेशन कि आपका लिस्ट में नाम आ सकता है उसके लिए. फिर हम आते हैं इंटरव्यू के साइड में. मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऐसा था कि लाइक काफ़ी बच्चे जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है, मैंने देखा है एस्पायरेंट्स काफ़ी पहले से इंटरव्यू पे फोकस करते हैं, बट आई वुड से प्लीज़ डोंट डू दैट. काफ़ी मिथ्स वगैरह आ जाएंगे आपके माइंड में. और जो हमें मॉक इंटरव्यूज़ देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साइड से, दे आर टू सम एक्सटेंट रिफ्लेक्शन ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू, बट दे आर नॉट होल एंड सम 100% एज अ यूपीएससी इंटरव्यू. बिकॉज यूपीएससी इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल होता है, उसमें ग्रिलिंग वगैरह कुछ ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती है यूपीएससी के फाइनल इंटरव्यू में, और क्वेश्चंस भी काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं. यूपीएससी इज़ अ स्टैंडर्ड बॉडी एंड आई वुड से कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए थोड़े ग्रिलिंग टाइप से या कंट्रोवर्शियल इश्यूज पूछ के कुछ एस्पायरेंट्स को स्ट्रेस में ले आते हैं. तो मैंने जानबूझ के मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन में मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स को अवॉइड किया था जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, और मैंने अपना प्रिपरेशन लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स को ध्यान रखते हुए वहीं पे कुछ लिमिटेड मॉक्स दिए थे. इंटरव्यू अगर देखेंगे हम लोग तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डैफ, जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो मेंस के बाद. उसके ऊपर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सबसे पहली बात. और उसको कैसे प्रिपेयर करना है? सो आई वुड से लाइक KSG है, खान स्टडी सर्कल ग्रुप, then there is Shankar IAS. These two coachings actually provide you questions based on your DAF. ये काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि इन क्वेश्चंस के अराउंड आप आंसर्स प्रिपेयर कर लेते हो. सेकेंड थिंग इज लाइक प्रीवियस ईयर जो ट्रांसक्रिप्ट्स है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जो हमारे जाने माने कप्तान है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से टेलीग्राम पे लाइक पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स प्रीवियस ईयर की डाल रखी है. सो आई वुड से अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप उन ट्रांसक्रिप्ट्स को जॉट डाउन कीजिए, ऑप्शनल के अकॉर्डिंग जॉट डाउन कीजिए और जॉब के अकॉर्डिंग जॉट डाउन कीजिए, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपने खुद प्रिपेयर किए हो ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे. और इवन अगर आपका इंटरव्यू लाइक लेटेस्ट से 10 डेज और 20 डेज के बाद है फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू, तभी भी आपको अराउंड 10 डेज के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और उन क्वेश्चन से गो थ्रू करने का मौका मिलेगा. सो दिस वॉज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑन योर ओन. नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉक्स, I had given mocks in KSG, in Vajiram, in Shriram, in Vajirao and Reddy, and in Shankar IAS. Also मैंने नेक्स्ट IAS में जो 2 मॉक्स दिए थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे. इन अ वे ये ऑलमोस्ट सारे ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स के पैनल्स थे, विच वॉज जस्ट रेप्लिका ऑफ लेटेस्ट से फाइनल इंटरव्यू. और
इन मॉक्स में, इन कुछ मॉक्स में ऐसा होगा कि आपको काफ़ी ग्रिल किया जाएगा, काफ़ी आएगा भी नहीं, बट फिर भी चलता है. इट विल मेक लाइक प्रिपेयर यू फॉर दैट डी डे. सो प्लीज़ गिव एटलीस्ट 7 to 8 मॉक्स. थोड़ा आपको कैसे बिहेव करना है ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी वहाँ पे. बट आई वुड से एट द एंड इंटरव्यू में कि आप प्लीज़ एक पर्सनल सेशन अटेंड कर लीजिए खान सर के साथ, और फोरम में मैंने आयुष जैन सर के साथ. ये दो पर्सनल सेशंस होते हैं. ये एक्चुअली आपका एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू प्रिपरेशन ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, एंड विद दैट बूस्ट लाइक पम्प अप कॉन्फिडेंस यू कैन गो इन द ओरिजिनल इंटरव्यू. सो ये था प्रॉपर इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रिपरेशन. देन ये हो गया प्रॉपर इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन था उसके बारे में. सो गाइज, दिस वॉज काइंड ऑफ माई ओन स्ट्रैटेजी, लेट अस से. इन द होल आई वुड लास्टली से कि फोकस मोर ऑन टेस्ट सीरीज एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस रादर दैन स्टडिंग जस्ट बुक्स. क्योंकि बुक्स पढ़ के मैंने काफ़ी एस्पायरेंट्स देखे जो फंसे ही रह गए. ठीक है, ट्रबल में है, क्या ही इशू हो रहा है, अभी फिर से आप PYQ को एज अ लाइट हाउस रख के, एज अ टारगेट रख के उसके अराउंड टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए. ये हमेशा लगता रहेगा कि आई एम इन ट्रबल वगैरह, बट ठीक है, अभी से फिर से शुरू करते हैं तब भी कोई इशू ही नहीं है. सो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं. जो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स जो UPSC टाइम ने मेरे साथ शेयर किए हैं. सो इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट तक हमने कर लिया है. सो नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने फॉलो की हुई सोर्सेस और बुक लिस्ट के बारे में ब्रीफ बताइए. तो मैंने वही स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही काफ़ी बुक्स फॉलो की थी, और वही फॉर्मूला है कि एक सब्जेक्ट एक बुक, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. बुक लिस्ट का अगर हम नाम लेते हैं तो वही है M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, R. S. शर्मा एंशंट के लिए, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, एंशंट आर्ट एंड कल्चर के लिए वी हैव फाइन आर्ट्स की और नितिन सिंघानिया की. नितिन सिंघानिया से कुछ टॉपिक्स किए थे, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर जो टेम्पल की हिस्ट्री बताता है. एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमी, ज्योग्राफी के लिए 11th स्टैंडर्ड की NCERT. इससे ज़्यादा मैंने कोई और बुक्स फॉलो की ही नहीं है पूरे प्रिपरेशन में. और इससे ज़्यादा मैं फिर बुक्स से ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज और उसके दिए गए आंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट था प्रीलिम्स के लिए. और मेंस के लिए बुक्स पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि मैं ऑनलाइन मटेरियल पे और फोरम IAS हो या दृष्टि हो या क्लियर IAS हो, इनके मटेरियल पे मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था, ऑनलाइन मटेरियल पे टॉपिक वाइज जो दिया जाता है, और टेस्ट सीरीज पे. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ कि आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की. आंसर राइटिंग इज़ एक्चुअली क्वाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आपको मार्क्स फेच मेंस में इसी से हो पाएंगे. मैंने 2019 में काफ़ी बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, एंड इट कॉस्ट मी अ लॉट. बट अभी इस बार मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऐसे की थी कि मेरा एक फ्रेंड है, ही वॉज माई जूनियर इन द कॉलेज, बट वो काफ़ी अच्छे हैं UPSC की प्रिपरेशन में. तो उन्होंने मुझे फोर्स किया काफ़ी टू राइट द आंसर डेली इवनिंग में, लाइक 5 to 6. तो जैसे एथिक्स को फोकस करते हुए विजन या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ ले लीजिए, एंड टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ लेके आप एटलीस्ट डेली 5 क्वेश्चंस को खुद से लिखिए, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस लाइक 1 आवर में हो जाना चाहिए. जैसे 10 मार्क्स का है तो 7.5 मिनट्स में वो ख़त्म हो जाना चाहिए. सो 7 तो वो 40-45 मिनट्स के अंदर आपका 5 क्वेश्चन को लिखना हो जाना चाहिए डेली, और रेस्ट टाइम आप फिर खुद का लिखने के बाद आंसर्स खुद के आंसर्स टॉपर्स के आंसर से कंपेयर कीजिए. सो दैट इज़ द मेजर इम्प्रूवमेंट विच यू कैन डू फ्रॉम योर साइड. इसमें आपको स्ट्रक्चर करना पता चल जाएगा आंसर को, इसमें आप डेटा कमिटीज़ को कैसे डालना है वो देख लोगे, इसमें आप आपके जो 5 पॉइंट्स है उसको कैसे लिखना है वो देखोगे. तो दिस वॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम माई साइड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन आंसर राइटिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 2 पेज मिलते हैं UPSC में.
और एक्चुअली आपको दो लाइक पैराग्राफ्स को या दो पॉइंट्स को आंसर करना होता है मेजरली। तो आप लाइक सबसे पहले 10 मार्क्स का आंसर लिख दो, पहले इंट्रोडक्शन को एज अ डेफिनेशन या डेटा के साथ, बाद में आप फर्स्ट पॉइंट को एड्रेस कर रहे हो टोटल आपके 5 पॉइंट्स में, लेट अस से विच में बी पॉजिटिव्स। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड टॉपिक है उस क्वेश्चन का या डिमांड है उस क्वेश्चन की, उसको एड्रेस कर रहे हो 5 पॉइंट्स में, और आखिरी में आप कंक्लूजन लिख रहे हो। दिस शुड बी योर स्ट्रक्चर फॉर 10 मार्क्स आंसर, and you should follow this in almost all the 10 marks answers. And extra thing you can add is a diagram on the right side of the first page, or let us say second page. This should be the standard way to write answer. For 15 marks you can do is, you are provided with 3 pages, and actually if you see the question, there will be mostly 3 points they would have demanded, और उन 3 points को आपको justify करना है 5 points पे। So ये होगा 3 लाइक पेजेस को कैसे फिलअप करें उसका एक स्ट्रैटेजी, और यूजुअली ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम्स इन 15 मार्कर्स। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी ऑफ आंसर राइटिंग फॉर 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हिस्ट्री में स्पेशली प्रीलिम्स में, जैसे एक था हमारा बटलर कमेटी का जो 2017 में आया था, दूसरा था हमारा उलगुलन का, वो भी पहले आ रखा था। तो हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं बट उसके ऑप्शंस के उसके सराउंडिंग टॉपिक पे रिपीट होते हैं, सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्लस मेंस के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं हमेशा। अगर उसको एनालाइज कैसे करना है ये देखेंगे तो आई वुड एक्चुअली शो यू गाइस कुछ मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने बना रखे हैं। अगर हम देखते हैं ये कि ये है GS3 का और इसमें गवर्नमेंट बजटिंग है, तो इसमें अगर मैंने देखोगे तो मैंने अपने वन नोट पे लाइक आई हैव प्रॉपरली मेड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इफ यू कैन सी ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज। इसमें से आपको एक काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस लाइक उस टॉपिक के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बनाने हैं अपने खुद के नोट्स में, और इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आई हैड प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स। लेट अस से अगर हम इफ़ वी से एजुकेशन है, सो एजुकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे पहले और उसी के ऊपर फिर 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सो आई वुड से कि जो आपका क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाए, द बेस्ट थिंग इज़ टू गो लाइक ईयर वाइज आप उसमें रेफ़र कीजिए, और ईयर वाइज रेफ़र करके आप उसको हर टॉपिक के वाइज एक सेग्रीगेट कीजिए। A4 पेज में आप कर सकते हैं या ऑनलाइन नोट में कर सकते हैं, और जब वो आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टॉपिक में आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड्स मेंस के नोट्स में अपने पॉइंट्स लिख लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। आप कोचिंग करोगे आपको हेल्प मिलेगा, बट आपको कितनी करनी है ये भी जानना है। अगर आप जीएस की कोचिंग देखते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं तो वो कर सकते हैं, पर काफ़ी लोग जीएस की कोचिंग नहीं करते, बट ऑप्शनल की कोचिंग में वो उतना मनी इन्वेस्ट करने का वो ध्यान देते हैं। तो आई वुड से कोचिंग अगर करनी है तो सबसे पहले प्रियोरिटी दीजिए ऑप्शनल की कोचिंग को। Afterwards you can do GS etc coaching if you have resources. I won't say it's most important, बिना कोचिंग भी काफ़ी लोगों ने क्लियर किया है। So it depends like on person to person. But coaching will help you in 2 things, especially GS coaching. First is कि आप टारगेटेड मैनर में आपका सिलेबस कवर कर सकते हो, और सेकेंड ये है कि आप लाइक जो कोचिंग में बताई जाती है चीज़ें वो थोड़ा सा याद रहती है हमको। फाइनली आई वुड से कि कोचिंग बस ऐसा है कि आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वो बस एक कथा की तरह बताया जाएगा कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था या ज्योग्राफी में ऐसा ऐसा हुआ है। बट अगर कन्वेंशनल कोचिंग देखोगे
तो उसके बेसिस पे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस या मेंस के क्वेश्चंस एड्रेस करना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कोचिंग इज़ जस्ट एक कथा की तरह आपको एज अ लेक्चर बताया जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और सॉल्व करने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद ही से करना पड़ेगा। फिर है यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। और प्रीलिम्स के लिए मैंने 2021 के अटेम्प्ट में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही की थी। मैंने विजन की थी, इनसाइट्स की भी उतनी ही स्टैंडर्ड है। सो टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं हम। प्रीलिम्स में मैंने विजन की फॉलो की थी, कोई इनसाइट की भी फॉलो कर सकता है। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ में मैंने इस बार फोरम की है। बोथ विजन एंड फोरम आर इक्वली स्टैंडर्ड। फोरम में मुझे इस बार ये बेनिफिट मिला है कि वहाँ पे मेंटर्स थे, एंड मेंटर्स ने एक्चुअली काफ़ी गाइड किया है टॉपिक प्रिपेयर करने में। सो फोरम इज़ ऑल्सो गुड, विजन इज़ ऑल्सो गुड फॉर मेंस। देन यूपीएससी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े। ओके, सो एनसीईआरटीज आर इम्पॉर्टेंट, पर मेरे ख्याल से अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है और उनको पढ़ना ही है, सो लेट अस फिक्स टू दो स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया या राजीव हयर की स्पेक्ट्रम हो गई। एनसीईआरटी मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की पढ़ी है, वो भी 11th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की भी नहीं पढ़ी है। और मैंने इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ी है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने लाइक फाइन आर्ट्स पढ़ा है। एंशंट और मेडिवल के लिए मैंने सिर्फ आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा 2 बार पढ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। सो आई वुड से काफ़ी लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी 6th स्टैंडर्ड से 12th तक पढ़नी चाहिए, एक्सेट्रा थिंग्स कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था ये। मैंने बस लिमिटेड एनसीईआरटीज़ ही की थी, सिर्फ ज्योग्राफी और इकोनॉमी की काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेडिकेटिवली मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो भी 11th और 12th स्टैंडर्ड टाइप्स, बाकी नहीं। एक ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स का या कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं कि तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। यूजुअली विजन आपको पीटी 365 में ऑलमोस्ट 1 आवर का करंट अफेयर्स कवर कराता है, राइट। सो आई वुड से 1 ईयर के करंट अफेयर्स आर सफिशिएंट। इवन करंट अफेयर्स पढ़ के भी काफ़ी क्वेश्चंस आप टैकल नहीं कर पाओगे। मेरा खुद का मानना यह है कि करंट अफेयर्स पे उतना फोकस नहीं देना चाहिए, बल्कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। प्रीलिम्स में भी और मेंस में सबसे ज़्यादा स्टैटिक में फोकस देना चाहिए। अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करनी ही है तो आप मान लीजिए दिन का 1 घंटे का द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, बट फिर भी वो याद नहीं रहेगा। सो आई वुड से कोई भी मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन को फॉलो कीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, तब आपकी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए है। मेंस के लिए टू बी फैक्ट मैंने पीटी मेंस 365 2019 और 20 में पढ़ा था, स्पेशली GS2 का और GS3 का। पर उसमें इशू ये है कि आप उसको आखिरी में रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर उसके नोट्स नहीं बनाओगे तो पॉइंट वाइज। इस साल जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैंने लिटरली मेंस 365 पढ़ा ही नहीं है, और मैंने करंट अफेयर्स मैंने जो प्रीलिम्स में पढ़े थे मैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट था मेंस के करंट अफेयर्स के लिए। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है जो न्यूज़ में थे, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर सर के हाईलाइटेड स्कीम्स हो या सर के जो स्पीचेस हो, उसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज ऐड किए हैं तो उसके ऊपर मैंने करंट अफेयर्स के खुद के नोट्स बना लिए थे। लेटेस्ट से ग्लासगो का समिट हुआ था, या फिर इंडिया का जो पंचामृत का स्ट्रैटेजी था, वो मैंने बस कुछ कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए थे इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। और मैंने मेंस के लिए इसके अलावा कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे। आई वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्टैटिक। और लिटरली आई एम सेइंग फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, स्टैटिक इज अ थिंग विच विल सेव यू, नॉट करंट अफेयर्स। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे, विच इज़ यूपीएससी में न्यूज़पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप कौन कौन से न्यूज़पेपर्स फॉलो करते थे
और न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना चाहिए. So guys, I would say reading newspaper is quite a good habit, first of all. पर गिवन प्रिपरेशन, गिवन आपका ऑप्शनल क्या है, तो आपको न्यूज़पेपर कितना पढ़ना चाहिए ये भी लिमिट करना चाहिए. मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था, सो मेरी डिमांड न्यूज़पेपर की उतनी नहीं थी, सिर्फ मेंस और प्री के लिए थी. तो मैंने सिर्फ एज आई टोल्ड यू कि पहले 6 महीने ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ वोकैबलरीज, राइट. उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर डिसकंटिन्यू किया था.